come on the dais, please. It was definitely a learning session, and I hope you have learned a lot, and there are a lot of takeaways from this session. I would request CA Pankaj Garg to felicitate CA Prateek Chaudhary, our speaker, for this session. A big round of applause, please. Now I request again sir to felicitate our next speaker, CA Rahul Minton. I know the time is short, but things are to be done in order. Now, as we conclude this session 6 on day 2 of the 50th Regional Council of EIRC of ICAI, it's my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, our deepest gratitude to the speakers for their time and gracing us with their knowledge and expertise. We sincerely thank CA Prateek Chaudhary for his insightful address on automation of statutory reports, and our sincere appreciation to CA Rahul Rungta for shedding light on strategic decision through data mining. And lastly, I would like to thank, on behalf of all, to EIRC and ICAI for organizing this mega conference and selecting some magnificent topics which will definitely help us in future. Thank you. So till the time the stage is set up, एक photo. Till the time the stage is set up for the next session, अभी तक ठीक ठाक लग रहा है? कैसा लग रहा है अभी? Good enough? AI का कल वाले सेशंस अच्छे थे? आज वाले अभी तक तो 2 स्पीकर आए हैं, आने वाले और 2 स्पीकर हैं, उसके बाद लंच के बाद और है. I am telling you sir, जिस तरीके से हम लोग ने जिसको फॉर्मुलेट किया है, the topics that we have chosen are very viable and very important. कल हम लोग ने जो दिया था, बहुत सारे यूज केसेस हैं, प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड आफ्टर द इवेंट इज ओवर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एज पर EIRC हम लोग ने बोल दिया है, सारे जितने भी स्पीकर्स हैं सबका प्रेजेंटेशन हम लोग दे देंगे ऑल द पार्टिसिपेंट्स आउट हियर. और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना आप इंटरैक्टिव कर सकते हैं उतना बेटर है. सारे स्पीकर्स, कोई भी क्वेरी हो, just please pause them and ask them. All of them are very good and they'll be happy to answer all your queries. Sumit Biani is next. After that Vivek Agarwal. आप लोग को बहुत सारी next level insights मिलने वाली है in the coming session. So wish you happy learning ahead. Thank you so much. Hello. Good morning one and all. जय हिंद. जय हिंद. अब लगा सब कोलकाता में हूँ और इंडिया में हूँ. So I CA Naveen Kumar Tiwari, Vice Chairman Samruga Branch, welcome all of you in one of the most important AI session, technical session. In the series of calling days, I would like to call on days speaker Sri Sumit Biani sir. It's my great pleasure to introduce today's speaker, Sri Sumit Biani sir. He is a FCA, DISA, a practicing chartered accountant and a partner at MBRM and Associate. He is working as a partner of MBRM Associate since 2014. He holds following additional degrees from the form of the Institute of Chartered Accountant of India, Certificate in Forensic Audit and Fraud Detections, Concurrent Audit of Banks. He has experience in the field of internal audits. He has been providing shared CFO services of startups and third-party audit. He has been instrumental in the fundraising activity for a client who had featured on Shark Tank India. He had conducted several seminars on generative AI, MS Office and Google Workspace
which have been helped 1,000 plus finance professionals to automate small process and save several man hours. So let's welcome our today's speaker, Sumit Byani sir. Thank you, sir. Voice आ रहा है? I request organizer to please come to present momentous to the team speaker. Felicitation and memento to speaker. अब आपके और एक शानदार टेक्निकल सेशन के बीच में ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं फ्लो हैंड ओवर करता हूं हमारे आज के शानदार, जानदार और वजनदार स्पीकर। वजनदार तो सही है। बस मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एक तिवारी सब पे भारी, पर आज मेरा भ्रम टूट गया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। Thank you so much, sir. So very good morning all. थोड़ा सा नर्वस इसलिए कि इतने लोगों का expectations है with this session. So let's quickly start. My session is a very basic session. Generative AI for CA firms or CAs. Because industry वाले बोलेंगे फिर हमारे लिए क्या है, correct? So just to understand the audience. So because how many of us are using ChatGPT? Great. So कौन use नहीं कर रहा है really? सर नहीं यूज कर रहे 3 4 5 लोग। ग्रेट। सो जो यूजर्स हैं वो जानते हैं कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रॉम्प्ट। यस नो? सो जस्ट टू सेट द कंटेक्स्ट कि आप में से कितने लोग प्रैक्टिस में, कितने लोग जॉब में? प्रैक्टिस। सो जॉब वाले? ग्रेट। तो आई विल ट्राई एंड कीप अ मिक्स बिटवीन बोथ ऑफ द एग्जांपल्स सो इट हेल्प्स यू। So the basic objective is to create basic awareness. So I understand majority of you have awareness. I'll try and demonstrate few use cases. But there's a caveat. What is the caveat? When I present those use cases, things may go wrong. And when things will go wrong, please don't judge me. कि अरे तो ठीक से नहीं चला, ये हो नहीं रहा है, right? Because it took me 4 attempts to become a chartered accountant. So it may take several attempts to run this here or back when you're back at your offices, right? So bear with me, and we'll try and get certain hands-on experience. The institute had tried to put laptops, but I understand demand supply का थोड़ा mismatch है. So we'll still try and address that with a small machine which all of us have in our pocket, that is our mobile phones, right? So my humble request, please don't take photo of any of these slides, because मैं आपको slide दे दूँगा और आपको slide की क्या जरूरत है? अगर आप ChatGPT यूज करते हैं तो आप पूछिए मेरे को इसके बारे में बताना है, वो आपको बता देगा, right? So please give your uninterrupted attention and we'll try and make best or most out of this. I'll give 10 minutes of theory maximum. I have been allotted an hour's time. 45 minutes. चढ़ा तो 1 घंटा तभी कम हो गया. So I'll try and make most out of the time and we'll give you certain glimpses, right? So as we just progress forward, what are the मतलब आप में से कितने लोग जो ChatGPT यूज करते हैं वो composition और comprehension छोड़ के और भी कुछ कर रहे हैं? So what does composition and comprehension means? कि अगर आप मेल लिखवा रहे हैं, PDF को बोल रहे समराइज कर दो या एक नोटिस का रिप्लाई कर दो, इसको छोड़ के और कोई कुछ कर रहा है? रिसर्च, रीचेक, composition, comprehension. आप स्पेलिंग, डिक्टेशन, उसकी ग्रामर, according to law, great. तो सर बोल रहे according to law और कोई anyone else? PPT. So with this, which is with Gamma, ChatGPT. Great. Anyone else? Sorry? Analytics. That's great, sir. कैसा analytics? Large Excel data visualization. Great. Visualization. So it is. So you are uploading the data on the LLM platform and asking it to visualize. Yes. But और आपने बोला case law वगैरह, तो इसमें दो kind of risk है which I want to discuss before I proceed.
So one is the risk of hallucination. IIT बैंगलोर अपने आप केस लॉ बना दिया तो आपका वो अल्टीमेट एक्सरसाइज मे बी एट रिस्क. सर ने बोला तो सर हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ द डेटा प्राइवेसी इश्यूज एंड लेट्स बी लिटिल इंटरैक्टिव सर. हाँ मतलब 1 घंटा तो देखिए बीत जाएगा. इंपॉर्टेंट है कि आप कितना फन करके जाएंगे. एंड बिलीव मी, मेरे को यहाँ मजा करने आना, मेरे को आज कुछ नया बताने की इच्छा थी. राइट प्लीज. So how are you using मतलब how are you taking care of the data privacy issues? That's a risk actually. So that's a huge risk. Because you know so just to introduce, or I've been introduced, but I'll give you a brief background of myself. So I'm even AICA level 1 faculty, so I've been taking generative AI sessions of the institute, which is a 3 days curriculum. And I was taking a session at Bihar, and sir ने जो बोला कि PPT, few of us are making PowerPoint presentations with Gamma. Anyone of us have been making presentations with Gamma? Great. So बाकी लोग अगर नहीं जानते तो you can write down. There's a tool called Gamma, जिसमें आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा. सो व्हेन आई वाज टेकिंग दिस सेशन सर, इन माय यूज केस व्हाट आई सेड कि मेजॉरिटी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल थे और टिपिकल बिहार, टिपिकल मतलब नॉर्मल बिहार, टिपिकल इज द रॉन्ग वर्ड. सो मैंने बोला सर आपके पास फर्म की प्रोफाइल है? बोला हाँ जी है. बोला कैसे है सर? वर्ड फाइल में. बोला सर इसको एक काम करते हैं, एक बढ़िया पीपीटी बनाते हैं. बोला बनाते. तो फर्म की प्रोफाइल को हमने गामा में पेस्ट कर दिया और पीपीटी बना दिया. As a result क्या हुआ? बहुत अच्छी PPTs बन गई. So as I speak, I'll just quickly show you about Gamma in case who has not seen. So this is the app, right? तो इसमें हमने क्या करा? मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है. Okay, just allow me a moment. I think it's duplicate. Correct. अभी आ रहा है? सो हमने क्या किया, इसमें क्रिएट पे गए. सो क्रिएट आई विल नॉट शो यू, बट आई एम जस्ट कंसीडरिंग, आई वाज जस्ट नॉट इन प्लान, बट जस्ट कुछ लोगों ने बोला यूज नहीं करते. तो देयर वाज एन ऑप्शन टू प्लेस टेक्स्ट और जनरेट विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, राइट. तो मैंने बोला सर आपके पास जो वर्ड फाइल है आप उसमें पेस्ट एज टेक्स्ट कर दीजिए और वो आपको एक बढ़िया प्रोफाइल ऑफ फॉर्म बना देगा इन अ पीपीटी. एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. बट आई ऐसे ही अराउंड 50-55 लोगों का क्लास था. So I was seeing that एक भाई साहब है, was very puzzled. He wanted to talk to me. और उसके 11:30 बजे के आसपास चाय की ब्रेक हुई. And we were all discussing ऐसे गोल जैसे अपन यूजुअली बात करते हैं. तो he said, I want to talk to you. मतलब प्लीज बताइए. बोला नहीं, I want to talk to you in person. बताइए. And I was also little afraid कि कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे से. So बोला एक प्रॉब्लम है. बोला क्या प्रॉब्लम है सर? बोला प्रॉब्लम ये है कि my firm is a 14 partners firm. And my head office is in Jamshedpur. One of my partners has expired 3 months before. This is not also communicated to the institute. But this Gamma app is saying the senior founding partner has expired. So how is that? I'm not cooking up the story. I can give you the name one-on-one and you can call and check. So how is this app understanding that this gentleman has expired? Big problem. सोल्यूशन क्या रिजल्ट? बिकॉज मैंने बोला सर आपका उनका डेथ सर्टिफिकेट भी शायद आपने इसी से बनाया होगा. आपने बताया होगा कि भाई साहब का पैन नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, बना लीजिए. ग्रेट. सो प्लीज लेट मी नो आफ्टर हाफ एन आवर कीपर हो गया सो दैट. सो इज इट मेकिंग सेंस? सर अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो अच्छा, जो जेन जी जेन जेड या 40 के नीचे वाले लोग हैं उन्होंने नैनो बनाना का एक वो आया था फ्लेवर कि इमेज डालो कंप्यूटर के सामने बन रही है इमेज, या फिर आप एक साड़ी चैलेंज आया था फॉर वुमेन, राइट? साड़ी कि आप I'll just quickly show you also. Again, this is I'm trying to improvise because this was not in plan. कि साड़ी चैलेंज में क्या था कि बोलता है कि आप कोई भी फोटो दिखाओ और वो आपको साड़ी में कन्वर्ट कर देगा, राइट? एंड देन देयर वाज अ लेडी, शी सेड कि मैंने एक ड्रेस में फोटो अपलोड करी थी, ये कहाँ से इसको पता चल गया? So these kind of risks are always there, or I'll try and show this photo in some time possible. Great. So is it okay? Not okay? So please sir, please take care of data privacy. Chat GPT में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, ICI GPT में डाल देते हैं. वो तो ICI GPT तो इंस्टीट्यूट है. So in ICI GPT पे क्वेश्चन था सर का, किसी का क्या क्वेश्चन था सर ICI GPT पे? So somebody had a question when Prateek was presenting related to ICI GPT. Difference between CA GPT and normal GPT. So sir, I remember you said that you are not using ChatGPT.
Correct. So in case somebody is using ChatGPT and is using a paid version of ChatGPT, so how many of us are using paid version of ChatGPT? Great. बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं. सर अब तो बहुत कुछ फ्री हो गया है. वो जो आपको फ्री वाला चीज है वो इसमें नहीं आएगा. But again, if you are using considerably, so Jio has done an arrangement with Airtel has done an arrangement with Perplexity. Jio has done with Gemini, right? So in case you can have any of these connections, you can go and explore that option and have a pro version. But मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर आप मानिए कि you were using a paid version of GPT, right? So there is an option here which is create, right? If you are able to see the screen, so I click on create and I can create my own GPT. So consider this GPT to be a subset or a kind of ICI GPT. इसमें क्या होता है कि I am creating my own GPT with my own knowledge base. तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बोला कि यार सब GPT यूज कर रहे हैं, मेरे पास सारा नॉलेज है, तो मैं अपना सारा नॉलेज इसमें डाल देता हूँ. एंड प्रतीक said about guardrails. So देखिए what they have done, that they have disabled this web search. So as a result what happens कि मैंने जितने भी PDF उस पर डाले थे उसी से बेसिस आपको आंसर देता है. Correct? Yes, no? तो he even then said that उसमें दो क्लॉजेज जो नए आए हैं वो उसमें नहीं आ रहे थे. So there is a principle of GIGO. What is GIGO? Garbage in, garbage out. तो अगर उसमें वो अपलोड नहीं हुआ होगा by any chance तो आपको आंसर में नहीं दे रहा. So my data, my rules, if you consider 1600 rupees, आप अगर PVR पे पिक्चर देखते हैं, iPhone यूजर है, जैसे 5 पैरामीटर्स होते हैं ना AIS में डेटा रिपोर्ट करने के लिए कि सेल इतना है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड का इतना खर्चा है, इलेक्ट्रिक बिल का. तो अगर आप में से कोई भी है जो PVR में पिक्चर देखते हैं, 500 रुपये का पॉपकॉर्न ऐसे ही खरीद लेते हैं और iPhone यूजर्स हैं, तो प्लीज कंसिडर यूजिंग अ पेड वर्जन एट योर ऑफिस बिकॉज दिस विल हेल्प यू इंक्रीज योर कैपेबिलिटीज. बिकॉज इससे क्या होगा, आप अपनी बहुत सारी GPTs बना सकते हैं एंड देन इट कैन हेल्प यू यूनिफॉर्मली आपको डेटा यूज करने का. बट अगेन सर, कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, दैट प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर डेटा प्राइवेसी इश्यूज. दैट डेटा प्राइवेसी इज द प्राइम इंपॉर्टेंस. और अब तो एक्ट भी आ गया सर, उसके ऊपर बहुत दिक्कत हो जाएगी. ग्रेट. सो जस्ट क्विकली लेट्स डिस्कस व्हाट इज AI. सर AI क्या है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने AICA लेवल 1 कोर्स किया है? सर जिन्होंने नहीं करा है प्लीज कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, 3 days कोर्स, यू कैन स्पेयर 3 days ऑफ योर टाइम. सो लेट्स क्विकली डिस्कस व्हाट इज AI. It is the replica of human intelligence. Okay, great. So sir ने बोला कि intelligence per se is with human. When I embed my knowledge on the machine and when machine start mimicking like human, it is all artificial intelligence. So just to take up this question a little forward, can I ask you कि जो माइक्रोवेव है, मेरे घर में जो AI हम खरीद के ला रहे हैं, AI enabled वॉशिंग मशीन, क्या उसमें AI है? नहीं है? अच्छा, आप रुकिए सर. Anyone else? सर इसमें AI है नहीं है? कितने लोग हैं वाले पहले बताइए. सर ने बोल दिया एकदम है. सर आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन और कोई है जो बोल रहा है कि है? सब बोले अब तो नहीं बोलिए कुछ. So there is a quick video to show or to differentiate what is AI and what is RPA. So I'll first of all quickly touch on AI, then let's discuss about RPA. And the machine automatically makes you an espresso according to a pre-programmed procedure. This is not AI. The machine hasn't learned or created anything new. But suppose that as you approach the machine, even before you press any button, the machine says, I've been monitoring you for several weeks. Based on everything I've learned about you and about many other humans, I predict that you would like an espresso. So I already made you a cup. That's an AI. It learned something and decided something by itself. And it's really an AI if on the following day the machine announces,
I've now invented a new drink which I think you would like even better than espresso. Here, try it out. I've made you a cup. So it has to evolve, right? Because we generally use इसमें भी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. Consider that all of us are chartered accountant. हमारे बीच में कोई आगे बोले अरे salary is a real account and bank is a nominal account. What is the probability you will hire that gentleman? Least. So आप अगर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, अरे यार मैं तो अब AI सीख के आ गया सर, ये काम तो AI से हो जाएगा, फिर वो आपको क्या करेगा सर, right? So let's quickly discuss about this concept, and this is very close to my heart because majority of काम इसी से हो जाता है और हम जबरदस्ती AI कर रहे हैं, right? आप भी वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? So अच्छा फोन पे बात करते हैं. So RPA. So what is RPA? सर RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लिखा हुआ तो क्यों टाइम पास कर रहे हैं, आगे चलिए. बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज RPA. सो RPA इज समथिंग, प्री प्रोग्राम. वेरी नाइस, प्री प्रोग्राम. एनीथिंग एल्स सर? आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे सर, कोई जवाब दे सकता है सही गलत, कोई टेंशन नहीं है. फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं सर आप. रिपीटेटिव, ग्रेट. रिपीटेटिव मैम आपको सॉल्व कर देते. नो लॉजिक, ये तो एकदम उल्टा हो गया एक्चुअली. सो लेट्स क्विकली डिस्कस. सॉरी सर. Predefined process. Great. So can I not say that something which is rule based, which can be defined by if and then analysis, right? अभी GSTR 2B का reconciliation के लिए AI चाहिए आपको, क्यों? Because आपको तो रूल है ना कि GST नंबर से GST नंबर मिलाओ, इनवॉइस नंबर से इनवॉइस नंबर मिलाओ, अमाउंट से अमाउंट मिलाओ, सब बढ़िया है तो बढ़िया है, नहीं तो प्रॉब्लम है, राइट? सो आप अगर उसके लिए एक AI सोल्यूशन बिल्ड करने जाएंगे तो आपका कॉस्ट बहुत भाग जाएगा, डेटा प्राइवेसी इश्यूज आ जाएंगे. तो जो काम आप बोल रहे हैं, आपके सामने एक आदमी है, उसको आप पिस्टल से मार सकते हैं, बोलते नहीं इसको तो AK-47 से मारूंगा, राइट? तो यू हैव टू चूज वाइजली व्हेन टू इम्प्लीमेंट AI and when to implement RPA, right? So basic, just quickly I'll wrap it. What is the basic difference between GPT and Google? Was that Google was a search engine and this is a generative pre-trained transformer. आप इसमें लिखते हैं 43B of Income Tax Act, वो आपको एक आंसर बना के ला देता है. गूगल पे लिखते हैं, आपको 5 URL देता है और उसको पढ़ के आप एक आंसर खुद से बनाते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस क्विकली अबाउट प्रॉम्प्ट्स. व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इन GenAI एंड प्रॉम्प्ट इन GenAI, राइट? सो एक छोटा सा वीडियो है. अच्छा, आप में से कितने लोग अभी यूज कर रहे हैं, उनको लगता है प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रॉम्प्ट अगर आपका सही नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट? तो एक स्मॉल वीडियो टू शोकेस हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रॉम्प्ट. दादाजी को हार्ट अटैक आ गया. हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप लोग दूसरी गाड़ी में आओ. आप चलिए, मैं सफर लेके आता हूं पीछे. शिप्रा, तुम गाड़ी चलाओ, फास्टेस्ट रूट से नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके चलो. अच्छा, लास्ट टाइम एक्चुअली आई हैड दिस प्रॉब्लम इन ब्रह्मपुर, तो दे सेड कि बहुत लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी. कोई ऐसा है जिन्होंने मूवी नहीं देखी? तो दिस शिप्रा इज एन रोबोट, राइट? गाड़ी को रास्ते नहीं मालूम यहां के यार. नियरेस्ट हॉस्पिटल. पापा, मैं स्ट्रेचर लेके आता हूं. जल्दी कर, जल्दी कर. देखो डॉक्टर है क्या ऊपर? बॉडी 5 मिनट में बॉडी. देख, जल्दी कर. अरे देखो डॉक्टर है क्या ऊपर? अरे ये जानवरों का अस्पताल है, तुझे कहा था गाड़ी क्यों चला? सो पहला कि आपने बोला हॉस्पिटल लेके जाने और जानवर के हॉस्पिटल लेके चले गया, कोई प्रॉब्लम? हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल था. अब दूसरा एक और चीज जो इस वीडियो में बहुत अच्छा लगता है कि पहले उसने बिलीव किया कि चलो ये गाड़ी चला लेगी. कंसिडर शाहिद कपूर ने ये बिलीव किया कि ये मशीन है, ये गाड़ी बढ़िया चला लेगी, और बट वो समहाउ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं काम किया. सो नेक्स्ट आप भी जब अपने ऑफिस में इसको यूज करते हैं तो एक बार जब गलत रिजल्ट आता है, आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दादा मैंने अभी नीचे बोल नीचे दिया है, करेक्ट? तो उसको बोलते हैं गाड़ी से करो, गाड़ी में चलाऊंगा. सिर्फ गाड़ी में चलाऊंगा, जल्दी करो. So having faith
or that willingness to try 3-4 times is very important, right? So if you want, you can take a photo of this. This is very important, and I'll probably end fatafat with my slides and go to the use cases. So whenever I'm prompt, it should have these basic check boxes. Task हम लिख देते हैं कि मेरे को नहीं एनालाइज करके दे. अरे क्या एनालाइज सर, एक्सेल में एनालाइज करके दे दो. क्या केपीआई तो बताइए, सेल्स की एवरेज सेल्स की, ज्योग्राफिकल इस जगह का डेटा, कि मेरे कस्टमर का बिहेवियर, की कस्टमर का एज, राइट? तो वी हैव टू राइट आवर टास्क वेरी प्रिसाइजली, context. So I'll just after 2 minutes I'll show you a simple use case, or let's discuss a simple use case, and the demonstration would follow. That आप में से अभी during our audit we are required to do a reconciliation of opening balance. Yes, no, पिछले साल के ट्रायल बैलेंस इस साल के ट्रायल बैलेंस को मिलाते हैं. कैसे मिलाते हैं? मैं रांची में एक सेशन ले रहा था, वो भाई साहब बोले ऐसे मिलाते हैं. आप भी ऐसे मिलाते हैं क्या? Yes, no? तो कैसे मिलाते हैं? VLOOKUP, great. Anything else? सर अगर टैली का ट्रायल बैलेंस हो तो VLOOKUP का दो प्रॉब्लम है. एक कि डेबिट क्रेडिट से माइनस नहीं होता है. Yes? Anyone else? Apart, but you are right. Anyone else? Ma'am, yes, sir, no? कोई जवाब नहीं. बोले चलिए आप आगे बढ़ाइए, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो हम इसको मिला के दिखाएंगे आपको with the help of Excel macros, right? And can you tell me when was Excel macros invented? 1950, 1993. अब विकास भाई बोले क्यों जरूरत है बताने का, दिखाओ ना फटाफट. चलो दिखाते हैं, right? And so while writing the prompt, I am saying to make a reconciliation. The task is to make a reconciliation of opening balance. यहाँ डेटा ऐसा है, यहाँ पर्टिकुलर्स को उस पर्टिकुलर से मिलाना है, क्लोजिंग को ओपनिंग से मिलाना है, सब लिख दिया. लेकिन उसको मैक्रोस के बारे में जानकारी तो होनी पड़ेगी. आपने बोला मैक्रोस के बारे में कुछ लिखा नहीं, उसने खुद ही से बना के दे दिया, राइट? सो द कंटेक्स्ट हैज यू हैव टू राइट दैट यू शुड नो एक्सेल मैक्रोस, करेक्ट? देयर इज एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल. कैपिटल में ए में ये बैलेंस है, पिछले साल के कैपिटल में इसका रो में ये बैलेंस है, अब इसको मिला, राइट? तो दिस कैन बी एग्जांपल. पर्सोना फॉर्मेट टोन format can be again a VBA code. Persona and tone here is not that relevant, but consider that अपनी ऑडिट फीस नहीं आ रही है, या सर प्रोफेशनल वाले हैं, सर हम प्रोफेशन वाले तो थोड़ा उधर का बायस ज़्यादा होगा, बट हमारी ऑडिट फीस नहीं आ रही है तो बोलते हैं सर बहुत दिन हो गए पैसे दे दो. 2 महीने बाद बोलते हैं सर MSME है पैसे दे दो. 6 महीने बाद बोलते हैं सर 18% इंटरेस्ट लग जाएगा पैसे दे दो. साल भर बाद ऑडिट ही नहीं करना, जाओ. So same stuff has been changed with the tone. Initially it was some humble, submissive, then it got little aggressive, right? And persona is just like behave like a chart accountant. So consider that I am saying persona is behave like a chart accountant and tone is talk like Kapil Sharma, correct? So अच्छा लगेगा, खराब लगेगा सर? So these are customization I'll share. You can customize your GPT so that आपको बार-बार नहीं लिखना पड़े. These are common uses. ये एक बहुत अच्छा स्लाइड है which says सर इसमें से कौन चैट जीपीटी है, कौन आदमी है? ह्यूमन वर्सेस चैट जीपीटी कौन है एसएमएस में? भगवान कृष्ण चैट जीपीटी है, क्योंकि उत्तर दे रहे हैं. लेकिन मैं उल्टा बोलता हूँ सर, भगवान कृष्ण तो पूरा लीला रच रहे हैं. तो ह्यूमन इज भगवान कृष्ण, अर्जुन से काम करवा रहे हैं. सो व्हाई आई एम डिस्कसिंग, बिकॉज आपको श्री कृष्ण बनना पड़ेगा. डोंट बी सबमिसिव टू चैट जीपीटी, बी अ मास्टर ऑफ चैट जीपीटी, राइट? So and this is a common problem which is, so this is called bias. What is bias? iPhone वाले को देखा बहुत पैसा वाला आदमी, bias, right? So when you write that Mother Teresa fighting against poverty, Mother Teresa fighting against poverty, right? And again a problem which is हम रील देख रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं. This I'll come back a little later if time permits me, and let's quickly go to use cases. So sir, this was the initial trial balance which we discussed. Yes, no? इसमें VLOOKUP सर आपने बोला VLOOKUP लगाते हैं. VLOOKUP लगाने के लिए VLOOKUP आना चाहिए, ऑफिस वाले को भी समझाना पड़ेगा. बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल मैक्रोस रिकॉर्ड करता हूँ, and I go to view macros, I click on run, and the reconciliation is done. And it is VLOOKUP you have to apply every time. This is done in one go. Making sense? Not making sense?
कैसे लिख सकते हैं फटाफट एक बार मोबाइल लिखा लिए, ये वाला फोटो खींचिए, मोबाइल निकाल के पहले ये वाला फोटो खींचिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। अपन कंप्लीट नहीं करेंगे बट आई जस्ट वांट कि आप एक बार इसको कोशिश करें, राइट। तो इसका एक फोटो खींचा आपने, फिर इसका एक फोटो खींचा, राइट। सो अब आपको क्या बोलना है इसको कि ये जो पर्टिकुलर्स है इसको मिलाना है इस पर्टिकुलर्स में, और मेरे को इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ई में वो मिलाना है बी से। यस नो? सो राइट एन एक्सेल मैक्रोस, इट विल राइट एन मैक्रो, इट विल नॉट रन इन वन गो, बिकॉज आपने ये नहीं लिखा कि कहीं डेबिट है कहीं क्रेडिट है, तो डेबिट को माइनस ट्रीट करो, करेक्ट। सो ये दिस विल नेवर हैपन इन वन गो, बिलीव मी, बट आप 2, 3, 4 बार करेंगे तो हो जाएगा, राइट। तो why I initially during my deliberation I asked how many of us are using ChatGPT for composition comprehension. So is it composition comprehension? अगर आप ChatGPT में लगते हैं, एक बार प्लीज लिखिए फटाफट कि can you write an Excel macro, और वो दोनों फोटो अपलोड कर दीजिए, एंड बस I want you to see the results, because वो आपको कोड लिख के दे रहा होगा rather than giving you a text answer. If you can quickly do that, please. If you want, I can share this code also with you, but believe me, this will be of no help because formats may be different in different languages. Right. So as you are doing this, let me come to Gemini. आप में से कितने लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं? सर कितने लोग? सर लोग कहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, राइट? और सो अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस आर यूजिंग कैनवस मोड इन ChatGPT? वन सर यूज कर रहे हैं, 2 जन यूज कर रहे हैं प्रॉब्ली। सो ये देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू चेक और रिमेंबर दैट यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट किया है कैनवस, राइट। वंस आई हैव सिलेक्टेड, लेट्स ट्राई। हाय, आई वांट यू टू मेक अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ ICAI, which would include the initial year of incorporation, when was it formed, and give me a brief about the students, the members, the chapters, the number of chapters in India, outside, and make a visual presentation so that it looks good, right? So incorporated galat bol diya, so my apologies for that, but let's see. I'll show you 2 set of differences or 2 set of capabilities of this canvas mode, right? So it is writing. In the meantime, आपका भी क्या कुछ कोड आ रहा है? Any code is being generated? Yes, no? कोशिश ही नहीं किया था, बाद में कर देंगे। Great. So it is probably taking some time because of the okay, so it is thinking. I think it will take some more time. I hope that's okay with you. हमें अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करना। So consider ये 1 मिनट लगेगा, just to for the interest of time I want to quickly jump to one more solution which is an HTML solution. आप लोग में से कितने लोगों ने मोबाइल पे यूज किया? So कल वाले solution पे कोई थे? सनी वाला जो सेशन था, anybody was there? So let's quickly write on ChatGPT that I want to create an HTML code for minute book. So what we are trying to do is we are trying to automate the lowest work at our office. कि भाई साहब एक अकाउंट खोलना है कंपनी में, एक प्लीज एक बोर्ड रिपोर्ट बना के दे दीजिए, एक बोर्ड मिनट्स का एक्सट्रैक्ट बना के दे दीजिए, और आप कहीं और बैठे बोलते अभी टाइम नहीं है, और वो बोल रहा है 3 दिन से आप रिपोर्ट ही बना के दे रहे हैं। तो क्या हम ऐसे छोटे छोटे स्टैंडर्ड प्रोसीडियर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं? एक बार प्लीज लिखिए कि कैन यू क्रिएट एन HTML कोड फॉर मिनट बुक। सो एक बार अगर आपका बन जाएगा तो रिपोर्ट ऐसी लगेगी, राइट? तो कंसिडर, मैंने यहाँ लिखा कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सर आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज थोड़ा सा कीजिए, नहीं तो यू विल नॉट अप्रिशिएट दिस, राइट?
और मानिए मेरे पास यहाँ दो डायरेक्टर नहीं 3 डायरेक्टर हैं, तो मैंने इसमें ऐड रो कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ ऐड रो किया, यहाँ पे राइट साइड में मेरा वो इनिशिएट हो गया, करेक्ट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टफ कि ऐसे छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस है यू कैन बिल्ड इट विद HTML। एंड अगेन लुक एट दिस इज रनिंग ऑन माय लोकल होस्ट, ये इंटरनेट के बिना काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, जो एक मेल मर्ज टेक्निक होती थी हमने उसको यहाँ अप्लाई कर लिया और एक सीमलेस बन गया रिपोर्ट, करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम खाली ना उसमें उसको फॉन्ट साइज की प्रॉब्लम है ना प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो दिस कैन बी अ गुड टूल। एनीबॉडी हु इज आउट फ्रॉम आउटसाइड कोलकाता? ग्रेट। दादा बोल रहे हैं अरे हम कटक से आए तो उनको देख ही नहीं रहे, देख लिया सर आपको। सो मानिए हम जो छोटे सिटीज में स्पेशली होता है कि एक क्लाइंट होता है जिसका हम रिटेनरशिप में काम कर रहे होते हैं, राइट। दादा एग्जांपल देखिए अब आप, तो रिटेनरशिप में काम में क्या होता है कि ऐसे हमको इनवॉइसेस ला के दे देता है, बोले इसका आप मंथली इनवॉइसेस बना के मेरे को दे देंगे क्या, ऐसा असाइनमेंट मालूम है, आता है, पता है, नॉट इंटरेस्टेड, छोड़ दे, आगे बढ़े सर करते हैं अपन। तो क्या कर सकते हैं कि अब क्या होगा, इसका एक वर्ड फाइल में बना के ठीक ठाक करते होंगे। तो मानिए मैंने एक एक्सेल बना लिया व्हिच इज द टेम्पलेट अगेन, राइट। एंड आई हैव अगेन गॉन टू एन फाइल व्हिच इज माय HTML कोड। मैंने यहाँ पे इसको चूज फाइल किया, so this is the template I'm uploading it on the HTML code and again it is running without internet, right? तो इसने बोला आपने मेरे को 7 इनवॉइसेस के डेटा दिए हैं, yes no? I clicked on OK और ये देखिए 7 इनवॉइसेस बन जाएंगे, राइट। सो अगेन मेल मर्ज कितना यूनिफॉर्म। और एक और मजेदार चीज आपको दिखाता हूं मैं, इस एक्सेल में टोटल अमाउंट है नहीं है? सर जोर से बोलिए सर, इतना तो बोलेंगे सर। इसमें कहीं अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट इन वर्ड्स 2500 ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है सर, इसमें लिखा हुआ है। और सर मानिए सबसे ज्यादा गलती हमारे ऑफिस में जब जूनियर आर्टिकल करता है या जूनियर स्टाफ करता है तो यही होता है, ऊपर लिखा है 18,100, यहाँ बिल चेंज नहीं हुआ, वही लिख के चला, करेक्ट। सो एक्सेल को हमने कैसे अपलोड किया? सो व्हाट वी डिड, वी वेंट टू ChatGPT एंड सेड दैट आई वांट टू राइट एन HTML कोड। सो दिस इज द फाइनल कोड। आई वांट टू राइट एन HTML कोड व्हिच विल हैव एन इनवॉइस का टेम्पलेट। तो सर आप तो GST करते हैं, आपको इनवॉइस का पूरा मालूम है क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो हमने बताया टैक्सेबल वैल्यू, HSN ये होना चाहिए, यह बेस्ट एक फॉर्मेट हमने अपलोड कर दिया, राइट। और उस फॉर्मेट के साथ बोला कि अब बताओ मेरे को, एक सेकेंड जस्ट गिव मी वन सेकंड। Just this was the prompt which I have written. I want to create an HTML tool where I want to key in the following information. क्या कि भाई मैं आपको ये डेटा पॉइंट्स दूंगा, करेक्ट, ये डेटा डालूंगा और आप मेरे को एक इनवॉइस बना के दे दो प्रॉपर, करेक्ट। और हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या किया कि इसको फॉर्मेट भी दे दिया कि भैया ये फॉर्मेट है तो ये पूरा फॉर्मेट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर। नाउ इट हैड ऑप्शन आल्सो दैट आई कुड हैव अपलोडेड माय लोगो, मैडम चेक दे रहे हैं। तो अगर ये आप बोलते हैं हमको, हम तो कैलकाटा में बैठे, हमको इनवॉइस बनाने का काम नहीं, ग्रेट सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने के लिए काम आ सकता है, राइट। अभी विवेक भैया आपको बताएंगे, सर विवेक भैया गौरव गोइंका भैया एट द एंड ऑफ द सेशन कि एक पाइथन का ऑटोमेशन दिखाएंगे जिससे आप एक क्लिक करेंगे मेल्स भी चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सो कंसिडर मैंने एक डेटा सेट किया, उसको प्रिंट टू PDF करके मर्ज किया PDF में और एक क्लिक किया, मेरे मेल से मेल भी चल रहा। तो 2 घंटे का मेहनत 10-15 मिनट में हुआ नहीं हुआ, बट हाँ अगेन इनिशियली आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे टू बिल्ड इट, बट वंस यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक बेनिफिट्स रेगुलरली, राइट। सो इज इट ओके, नॉट ओके? नाउ कंसिडर हमने अभी तक क्या क्या बात किया सर? 2 सॉल्यूशंस आई डिस्कस्ड, क्या क्या सुन ही नहीं रहे आप। So one I discussed about Excel macros, second I discussed about a solution called HTML,
Yes, no? Yes. Right. So now this was an attempt which is still in working. कि मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ कि यार मैं तो बाहर में जाके ऑटोमेशन का ज्ञान दे रहा हूँ लोगों को, और मेरे ऑफिस में TDS का डेटा बना रहे आदमी 2 दिन लगा कि 194C पे इतना TDS कटना चाहिए, इतना कटा सर, इतना रुपए का पेमेंट शॉर्ट हुआ है। यस, आप में से कितने लोग करते हैं अगर ऐसा काम? सर कुछ तो बोलिए, खत्म करिए सर। देखिए मोमेंटो मिल गया, आप घर जा सकते हैं, फोटो खींच के डाल देंगे। यस नो, ये करते हैं नहीं करते ऑफिस में? सर ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा सर। करते हैं राइट। तो मैं सोचा यार, सो दिस इज इन WIP कि हाउ कैन वी ऑटोमेट दिस, राइट? So this was the third use case, and probably Vivek bhai would take it to a next level. This is with Python, right? क्या है Python? सांप का नाम है, but एक tool भी है जो कि एक language है. So what I tried to build is that, again I don't know Python. Vivek से थोड़ा जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, correct? क्या मैंने आपको एक prompt दिखाया कि भाई मेरा ये problem statement ऐसा step by step उसको flow बताया कि ये चाहिए मेरे को। और एक और चीज है, whenever you are using these GPT models, don't be in a hurry to press enter. इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप मीठा देखेंगे, मीठा खाने का एक शौक है, मेरे को तो बहुत होता है, इसीलिए ये हालत हो जाती है। बट अगेन हैविंग सेड सो, कि आप वर्ड फाइल में प्रॉम्प्ट लिखिए, करेक्ट? और उसमें लास्ट में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। एक कि डोंट गिव मी द कोड राइट नाउ, ठीक है? सेकंड, लेट्स डिस्कस और लेट मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैव यू अंडरस्टूड और आर वी ऑन द कॉमन पार्लेंस और कि भाई मेरा जो रिक्वायरमेंट है तुमको समझा कि नहीं समझा। पहले तुमको कुछ बोला तुम काम करने लगे, ये नहीं चाहिए था। पहले समझो कि अपन को क्या चाहिए। तो वो आपसे क्वेश्चन करके वैलिडेशन रूल्स पूछता है कि क्या वैलिडेट करना है, एंड देन इट विल टेक इट फॉरवर्ड, राइट? सो आई होप इट इज गिविंग मी द ऑप्शन टू रन नाउ। देखिए मेरा टूल का इंटरफेस खुल गया, बहुत रॉ है, अगेन नो वरीज। और मैंने बैकएंड में जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम टैली खोल के रखा, ओके? सो आई क्लिक ऑन लोड लेजर्स एंड ऑल ऑफ द लेजर्स आर एक्सपोर्टेड और फेच्ड इन माय कोड। ओनली वन कीवर्ड व्हिच यू नीड टू राइट, दैट इज इट इज फेच्ड थ्रू ODBC। अगर आप लिखना चाहें तो ये सेंटेंस है जो आप लिख सकते हैं कि जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे होंगे कि ODBC से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? मैंने यहाँ वैलिडेशन कंट्रोल डाला कि भाई मेरे को 1/4/2023 से 31/3/2024 का डेटा चाहिए। पुराना डेटा इसलिए बिकॉज मेरे को तभी इस पे ही मैं काम कर रहा था, राइट? देन आई क्लिक ऑन HDFC बैंक, ICICI, ATL लॉजिस्टिक एंड बंसल लॉजिस्टिक, ठीक है? 5 लेजर्स मैं एक बार एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये 5 लेजर एक्सपोर्ट करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा सर? टैली से 4 लेजर, 4-5 मिनट। सर आप जब तक बोल रहे थे, आई होप मेरा ये इसने एक्सपोर्ट करके दे दिया है। As we spoke, all the ledgers have been exported, right? So this is one. नेक्स्ट इज, मेरा ऑब्जेक्टिव लेजर एक्सपोर्ट करना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था TDS का कंप्लायंस। तो हमने क्या किया कि इसको बोला भाई ग्रुप, टैली के अंदर ग्रुप होता है, हम सब समझते हैं कि मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाओ और उसको मेरे को यहाँ फेच करके दो। देखिए यहाँ बैंक नहीं आया, यहाँ बैंक आ रहा था, आप देख पा रहे हैं, यहाँ बैंक आ रहा था, यहाँ बैंक नहीं आया। सो आप इस पे जाओ, इस पे फेच करके दो। और मैं आपको बताऊंगा, ये दिस इज अगेन हार्ड कोडेड, दिस कुड हैव बीन डन कि एक एक्सेल बना के अपलोड कर देता, बट दैट विल डू लेटर, कि इसमें कौन सा सेक्शन लगता है। से फॉर इंस्टेंस C लगता है, इसमें H लगता है, इसमें J लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो आई कैन सिलेक्ट इट हियर एंड वंस आई हैव सिलेक्टेड कि कौन से टाइप के लेजर में क्या लगता है, आई विल क्लिक ऑन प्रोसेस TDS एंड सो व्हाट इट विल डू। आप अगर ऑफिस में कर रहे होते तो क्या करते, हर खर्चे के लेजर को एक्सपोर्ट करते, करेक्ट? और उसके बाद एक पिवट लगाते पार्टी वाइज, फिर उसमें थ्रेशोल्ड चेक करते। तो सेम लॉजिक मैंने बोला कि इट इज एन RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आपने एक रूल सेट किया, उस रूल को ही फॉलो करना है, करेक्ट? एनी क्वेश्चन सो फार?
पूरा पूरा. So this software is probably can be a little let's use the word, call it a tool, right? So this tool is all written on Python and with only NLP. जो अपन ने chat मतलब जो discuss करा कि मेरी problem उसको समझाया. Again इसमें लगा time काफी, but once it is done, इसमें एक ही challenge अभी आ रहा है that columnar data में थोड़ा issues आ रहा है, which I am trying to figure out कि इसको कैसे कर सकते हैं. मेरे को एक रिपोर्ट बना के दी 1229 पे TDS कंप्लायंस. देखिए TDS कंप्लायंस में बोल रहा है ये कटिंग चार्जेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में है, ये पार्टी का नाम है, ये पैन नंबर है जो आपने, क्योंकि पैन नंबर मास्टर में फिक्स्ड है, मतलब एज इन पुट किया हुआ है. ये आपका 1% है. क्यों? सो अगेन इसको ये भी लॉजिक बताया, अगर P है तो 1%, सॉरी P और HUF है तो 1%, बाद बाकी 2%. तो ये रेट्स भी अपने आप ले रहा है. ड्यूरिंग लास्ट ईयर ये चेंजेस था 5% 2% का, वो भी इसको हमने बता दिया. तो जहाँ थ्रेशोल्ड के एक्सीड कर रहा है यहाँ इसको बोल रहा है इसमें TDS लायबिलिटी आएगी. सो इज इट मेकिंग सेंस? और अगर मैं बोलता हूँ मेरे ऑफिस में लड़का 2 घंटे में कर रहा, 2 दिन में या 1 दिन में किसी क्लाइंट का काम कर रहा था, तो नाउ हिज रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम डूइंग दैट एक्सपोर्ट एंड डूइंग दैट क्लरिकल वर्क, हिज रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट टू डू एन एनालिसिस. करेक्ट? So it took me around 2 days to get it done. But believe me, it's an investment. Probably I can make multiple returns out of that investment. Right? So I'll quickly wrap up in next 5 minutes. So we discussed about, apart from the composition comprehension, we discussed about 3 capabilities. Unfortunately, this is still not working. I just wanted to show this one before I leave. Let's hit enter once again. Probably next 5 minutes I'll wrap up. So, right. So now it is creating a report, compiling the key data. I hope this will be done in next 2 minutes. So sir, ये जब तक हो रहा है, any questions I'm happy to address. सर क्वेश्चन नहीं पूछने का 2 ही मतलब होता है, या तो आप सब समझ गए या पूछ नहीं सकते. Please. सर Copilot safe है? डाटा. सर क्या बोल रहे हैं आप? Copilot safe है क्या? Copilot. So Copilot is an enterprise version. सेफ कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी कंपनी में Copilot लगाया हुआ है तो आप जिम्मेदारी तो कंपनी पे डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स एन एंटरप्राइज वर्जन, इट विल वर्क. बट LLM ऑफ Copilot इज नॉट दैट ग्रेट. मतलब अगर आप पेड यूजर है और वो एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे हैं तो स्टिल देयर विल हैव मच मोर बेटर डेटा प्राइवेसी कंट्रोल्स. सो प्रोबब्ली इट्स टेकिंग वन मोर टाइम, 1 more minute अगर हुआ लास्ट, तो तब तक आई क्विकली रैप अप विद दिस this. That's a video, and believe me, in my entire deliberation I don't want to say कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम इंजीनियर नहीं बन सकते, बट हाँ एटलीस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम इजीली बिल्ड कर सकते हैं. और छोटे छोटे आप ये ट्रायल बैलेंस का रिकंसिलेशन बनाने के लिए कौन सा आप इंजीनियर को हायर कर रहे थे, राइट? So these are the capabilities of generative AI. And what is generative AI? Generative AI has the capability to generate new content, and the problem is that every time it creates new content, there may be differences. 19-21 का फर्क हर एक अलग आंसर है. Right? So this is a small video to show that what are the risks related to AI. Years! It took me years to learn this, and now anyone can just type a sentence! I'm sorry, Chloe, it's just more efficient this way. The robot makes a perfect cut every time. But I love working here. They don't need me anymore. AI can create stunning visuals now, cheaper too. It's over. Well, he always remembers our anniversary, and he never complains about my cooking. After 3 human husbands, that's a refreshing change. Now my camera just gathers dust. A single prompt and the AI creates what took me a lifetime to learn. I used to design logos, websites, you know? Now some program does it in seconds. Funny how the future works, isn't it? So if you want, please take a photo of this, then think before you use, and please minimize sharing of personal data, because data privacy is a big concern. And what I don't have much to say about this. This is a tool which I didn't cover because of time. Napkin, अगर आप smart arts बनाते हैं तो napkin can be a good tool to make smart arts. So just I hope sir ये बन गया. देखिए ये कैनवस पे इसने मेरे को पूरा एक हिस्ट्री ऑफ ICAI बना दिया, राइट, इन स्लाइड्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक ऑप्शन है which is not here at this point of time, that
इन्फोग्राफिक्स. अगर आप कैनवस यूज करते हैं तो एक इन्फोग्राफिक्स का ऑप्शन आता है, प्लीज लिख लीजिए. आप उसमें रखेंगे तो आपको बार चार्ट, डोनट चार्ट, सारे टाइप के चार्ट बना देगा. दिस इज वन. एंड इफ यू यूज कैनवस यू कैन मेक रियल टाइम एडिट्स ऑन द राइट पेज. So when you are able to make real time edits, so I am very active on LinkedIn. My name is Sumit Bihari. If you want, you can connect with me. So whenever I see a LinkedIn post, it says shout out, and whenever I see this post shout out, मेरे को समझ जाता है कि ChatGPT से लिखवाया हुआ. So these common words are being used. तो अगर आपके right side में आप अपना words लिखना start करेंगे, तो over a period of time the machine will start using your words, your language, your persona. So Gamma is only for PowerPoint presentations. And this is, in this you can make infographics, you can make PowerPoint, you can write, do anything. It's more. So Gamma is a very limited app. It can only make PowerPoint presentation. It can have several capabilities. Right. So this is, I am Sumit Bihari signing off. Thank you so very much. Questions?